Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. Hi guys, I am Stuti Ghosh and this is Mera Wala Grief, a podcast for anyone dealing with loss. When I lost my father a month back, I realized that although my well-wishers or friends or family, they were trying to reach out and message and call, but sirf wo log who themselves had gone through this pain were the ones I could really relate to. Somehow वो जो एक लाइन लिखते थे या कुछ बोलते थे वो मुझ तक जल्दी पहुंचती थी बात, बिकॉज कहीं पे मुझे भी ऐसे लगता था कि वो मुझे समझ पा रहे हैं and I could understand from where they are coming from. Today on the show I have someone very special. मैं इनका नाम लूंगी तो आप बिल्कुल जान जाएंगे ये कौन है. प्रतीक गांधी. After scam 1992 he has made a permanent place in our hearts, and also the years of hard work that he has put into his craft is a different inspiring story altogether. But आज प्रतीक मेरे साथ हैं. Together we are trying to decode grief. So सबसे पहले welcome to the show Prateek. Thank you, Sudhi. Thank you for having me on the show. And I also want to tell you that अभी तक हमने जितने भी guests से बात की है, you are the first male guest on the show. Oh. And the reason I'm pointing it out is, you know, when I was thinking about मैं कैसे शुरू करूँ. एक तो conversation about death और grief में मैं अभी भी थोड़ी झिझकती हूँ, मुझे नहीं आसानी से बोला जाता है. But हमें we you know given to believe that लड़कियां औरतें ज्यादा इमोशनल होती हैं, men are strong, ये वो डील कर लेते हैं. You lost your father 2 years back. Yeah. Are you that strong? Would you say that? I mean, I don't know what is the definition of being strong or being weak or being soft or being hard, you know. But I think I'm truly emotional, and as an actor, I'm supposed to be emotional because that's what my business is. I have to feel the emotion to create those characters, you know, to tell you the stories. And when it comes to parents, when it comes to your loved ones, near ones, I guess feeling and emotions are the only thing that we have. Nothing else can express or explain it, that relationship. So I don't know. It was very difficult. I was very close to my father. I'm still very close to him, and he's very 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 close to me. मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था ना, डैड टीचर थे. कभी स्कूल से बच्चों के ट्रिप के लिए चले जाते थे 2-3 दिन बच्चों को लेके. मैं तो बहुत छोटा था. I could not sleep without him. I still remember कि मैं रोता था. मुझे रात को कुछ weird से सपने आते थे. जब डैड नहीं होते थे तभी ऐसे सपने आते थे और मुझे बहुत मतलब I used to feel scared. I don't know what was that feeling because I think I was 6 years 7 years का होगा मैं तब की बात नहीं है. But I still remember those days. सूरत में हम छोटे से घर में रहते थे, 1 room kitchen में. But डैड जब नहीं होते थे ना तो I never felt comfortable. He was my biggest strength. He still date my biggest strength, biggest encouragement and all. When I lost him, I did not know how to handle it. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है. और ये ऐसा नहीं था. It was not a sudden thing. I saw him going slowly. Because he was suffering from cancer, and you know, each and every day of the treatment and everything that I was constantly. I don't know, because in 2015, just a day before my daughter was born, he was diagnosed with cancer. Okay. Just 1 day before. Wow. The gamut of emotions जो आपके अंदर होंगे, मतलब from And my cousin was a doctor. He only diagnosed it, and he told me कि you just come and meet me. तब तो जॉब भी चल रहा था, तो वहां से सीधा गया था मिलने उनको. उन्होंने बताया कि ऐसा है. I don't know, मुझे अंदर से तब उतना डर भी नहीं लगा. मेरे मुंह से पहले एक ही बात निकली थी कि तो अब what is the next step? क्या करना पड़ेगा? I want to get on to it immediately. जो करना है सीधा करना शुरू कर देते हैं. और ड्यू डेट नेक्स्ट डे था फॉर माय वाइफ. तो हमने बोला एक दिन तो नहीं बताएंगे, लेट्स सी. उनके साथ बाद में बात करेंगे, डैड के साथ.
My daughter was born. Next day morning, I told my father कि हमें जाना है, छोटी सी ट्रीटमेंट शुरू करनी है, and we'll start this. That's when I told him कि यार कैंसर और ऐसा सब कुछ है, we'll treat this. He came out of it in 9 months, completely out of cancer. Everything was good, Hmm. and it relapsed after 3 years. Hmm. और ये रिलैप्स ऐसा था हमें पता ही नहीं चला कुछ. It kept on happening. और मैं तब भुज में कहीं पर एक शूट कर रहा था एक फिल्म के लिए, रावण लीला, which is Hmm. yet to release. That's my first Hindi film as lead. A big thing for me कि यार Hmm. मैं शूट कर रहा हूँ भुज में. मॉम डैड बॉम्बे से सूरत गए थे for couple of days, and वहां पर डॉक्टर को दिखाया क्योंकि उनको बहुत वीकनेस लग रहा था. एंड डॉक्टर सडनली सेड कि यू कैन नॉट रोम अराउंड लाइक दिस, मतलब आपकी जो अभी कंडीशन है उस हिसाब से तो यू शुड बी हॉस्पिटलाइज इमीडिएटली. वहीं से मुझे डॉक्टर ने फोन किया. ही वाज अ वेरी क्लोज रिलेटिव, सो ही टोल्ड मी कि दिस टाइम इट लुक्स रियली स्कैरी, बट यू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ये जब पहली बार सुना था ना, तब से पता नहीं क्या हो रहा था मेरे अंदर. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हाउ टू आई रिएक्ट. Hmm. और ऐसा है कि मी एंड माय ब्रदर, Hmm. वी टू ब्रदर्स इन द हाउस. और मेरा काम ऐसा है बिकॉज आई वाज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, शोज के लिए टूर पे जा रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ. और ऐसा था तब एक एक रुपया बहुत इंपॉर्टेंट था, Hmm. बिकॉज मुझे डॉक्टर ने एक ही कट शॉट में बता दिया था कि यार यू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, यू नो, Hmm. because you'll have to go through that turmoil economically also, Hmm. emotionally also, and mentally and physically you have to be very fit to tackle it. So I don't know यार, some ये इस टाइप की सिचुएशन जब आती है ना, तो अंदर से अपने आप आपको वैसे ही प्रिपेयर करना शुरू कर देते. आई हैड नो वे आउट. मतलब ना रोने का टाइम था, ना बेचारे बनने का टाइम था, ना कहीं पर जाके किसी से बात करने का टाइम था. वी जस्ट स्टार्टेड द एक्शन व्हाट वाज रिक्वायर्ड. Hmm. Hmm. जो था जैसे था, जितना कर सके वो सब कुछ. बॉम्बे में आके इमीडिएटली वाज हॉस्पिटलाइज्ड एंड ट्रीटमेंट स्टार्टेड एंड ऑल, एंड वी वर फिगरिंग आउट कि हो क्या रहा है. हिज बोन मेरो स्टॉप्ड वर्किंग. तो हफ्ते में 3 दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है, हफ्ते में 2 दिन उनको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ रहे हैं. ही वुड ब्लीड फ्रॉम एनीवेयर बिकॉज प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, तो ये होता था. बट आई गॉट दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम माई फादर. he would always put up a strong face, and he would always say कि कुछ नहीं, सब ठीक. Beyond a point, the doctor once told me when he was hospitalized कि यार your father is confusing me because his data is showing something else, and whenever I ask him he just does this. Okay, all good. मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे ट्रीट करेंगे. एंड दैट्स हाउ दैट स्ट्रांग ही वाज. आई एम श्योर उनके दिमाग में जो चल रहा था वो भी मुझे पता है कि अगर मैं ही थोड़ा वीक टूट हो जाऊंगा जाऊंगा, तो कैसे then what will my kids do? Not that I was very young, not that I was very old. There is no age to lose your parents, you know. मतलब आप 50-60 के भी हो, and if you are losing your parent, you are never it'll, prepared to you are never prepared. You are never prepared. But in this case, I guess God prepared me and my whole family. That slowly and steadily we saw him going. I still remember me and my mother the day my father passed away, just one night before that. We both were sitting, and she told me, "Yeah, I think he should not suffer anymore." You know, I'm sure it was damn difficult for her to say these lines, but we saw him suffering, so we felt, okay, whatever is good for us, let that happen. And I still remember when my father was last, जब डॉक्टर ने बोला कि अब आप वेंटिलेटर और ये सारा कुछ मत कर. हम लोग सब उनका हाथ पकड़ के खड़े थे. Slowly it was just going down, and we saw him going, and we just said, all of us, me, my wife, my brother, my mom, we were just there, and we just told him one thing: you don't worry about anything. Everything is good. You are also happy, and we are also happy. You don't worry. मुझे नहीं पता कि ये ताकत कहाँ से आई. How could we say these lines? But then I guess the Almighty can only give you that power, that you understand anything that has come on this earth has to go. And it is a cycle. I know, see, these are all things that we have been learning since we are born. All our scriptures say the same thing. हम सारे बड़ों से भी यही सुनते हैं, सब जगह यही सुनते हैं. पर when you experience it, it is a different thing altogether, and it changes you from within forever.
तो वो किसी भी चीज को पकड़ के रखना है, मतलब मेरा ही है, मेरे साथ ही रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली. So I guess now I see everything. I see world in a different light after I lost my father. Yeah. I think I'm more free from my mind, more free from my heart. I have nothing is permanent, is what I know for sure. So be in present, be happy, keep people happy, and that is the only fulfillment that you have in your life, is what I have learned. As far as handling this grief is concerned, it is very complex, very difficult, I know. पर ये जो सालों से हम सुन रहे हैं, जो बहुत किताबी बात है या बहुत ही क्लीशे है, but time is the only solution to this. Yeah. And what I felt is I was in a guilt कि यार मैं इधर उधर भाग रहा था. I could not spend that much time with my father. I still remember he was hospitalized. I had to go for a show somewhere. I said, Dad, मैं ना बोल दो. नहीं, मत करना. You keep performing. भाई है ना मेरे साथ. He said कि तू जाना. And he was a guy who constantly, he was happy for whatever I did. छोटे से छोटा शो से बड़ा शो कि कोई शूट के कुछ भी कर लिया हो. मैंने कहीं जाके कविता का पठन भी कर लिया हो अगर, तो भी ही वाज हैप्पी. अरे यार कैसा रहा, कैसे किया तूने, तुम ऐसे करके देखना. अगर रावण का कैरेक्टर कर रहे हो ना, इसको ऐसे करना. तो आई वाज अंडर दैट गिल्ट कि यार मुझे जो टाइम चाहिए था ना लास्ट में, because I constantly had to arrange for money also. I had to work. I had no option. Yeah. Every day, evening 7 o'clock, I should get that message from the hospital. Today's due amount. Yeah. And beyond a point, if that amount goes beyond some thousands, then unless I clear it, the next treatment wouldn't happen. So I had to constantly run and do that. But I guess ये जो time और situation है ना, it makes you more human. It makes you stronger, and it makes you ready to face this reality that this is how it is. इसमें आप कुछ कर नहीं सकते. इसके beyond a point इसका कोई इलाज है ही नहीं वैसे. So I found my comfort place in a thought where I felt that I have just lost him physically. Yeah. Now we both are, me and my father, we are free to be with each other. Always. Every time. Yeah. Always. I can even travel with him now. So now he is with me. And I guess when I lost him, when he just left us, he went up there and he fixed everything for us. So things changed. Things changed. Yeah. But yeah, I miss him every second. I talk to him every second. And he is with me every second. So that's the only thing that I've come to. And that's the only conclusion in my mind. Yeah. आपने इतनी खूबसूरती से you've explained this, and also the different shades of grief from the first time you got to know. क्योंकि कैंसर एक ऐसा वर्ड है, वो सुनते ही हाथ पांव पहले ही फूल जाते हैं कि अब क्या करें. To, like you said, to even be able to pray कि और suffering ना हो. That's one bit that takes me back to that hospital room jahan my father was there and I was next to him. And when you see, because for everyone, fathers are the strongest. So when you see them lying there like that with tubes, kahin pe lagta hai ki ye pain mein hai, and I don't know kahan se ye strength aati hai to actually pray ki or nahi, let him not suffer anymore, let just take away the pain. So although we are never mentally prepared, never understand the reality कि वो चले जाएंगे तो क्या होगा, but ये जो अंदर से एक आवाज निकलती है कि भगवान बस पेन ले लो इनका, he shouldn't suffer. उसके बाद वो यहाँ है physical form में या नहीं, वो चीज बहुत बाद में समझ में आती है कि उसका क्या अर्थ था. Sorry, but you've actually brought out a very important point, which is कि जब हम caregivers होते हैं तो इमोशनली तो शायद ब्रेक डाउन कर भी जाएं कि बैठ जाएं एक तरफ सर पकड़ के कि क्या करें, बट प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं, हॉस्पिटल जाना, दवाइयां खरीदना, इलाज के पैसे, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन,
हर चीज का ध्यान रखना, डिसीजंस लेना, जो इंसान डर जाता है कि मेरे एक डिसीजन लेने से पता नहीं क्या होगा. एज अ केयर गिवर, जब जब वो चले गए प्रतीक, तो कभी ये एक फेज था आपका जब यू जस्ट रीप्लेड एवरीथिंग इन योर हेड एंड ये गिल्ट आ गया था कि जैसे अभी आपने बोला मैंने सही तो किया ना, कुछ गलत तो नहीं किया, वो ट्रीटमेंट कर देते या ये कर देते या ऐसा कर देते, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम दैट, और वो एक ऐसा विशियस साइकिल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. और ये बहुत सही बात, ये होता है, हर एक के साथ होता ही होगा. I also faced this emotion. In fact, till date, even after 3 years, randomly ये बात घर पे शुरू हो जाती है, मेरी मॉम की, भाई की, कि अगर उस दिन ये कर लिया होता, अगर उस दिन ये कर लिया होता, अगर ये हो गया होता. बट आई डोंट नो यार, आई थिंक कि ये जैसे होना था वैसे ही हुआ. मुझे अंदर एक शांति है. आई हैव दैट वन सेटिस्फैक्शन कि हमने ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है. इंटेंट में हमारी कोई कमी नहीं थी. इंटेंट में कोई कमी नहीं थी. और डिसीजन तो ऐसे हैं कि ये लो ये लो ये लो. देयर आर n number of answers to this. What we felt at that time, which was the best, with all the guidance that we could get, we did. मॉम को कभी कभी आज भी लगता है कि अगर उस दिन ये नहीं कर लिया होता ना तो ये हो जाता. बिकॉज आई रिमेम्बर दैट वन डे जब डॉक्टर ने उनको बोला था कि नाउ यू आप घर जा सकते हैं बीच में, और तब ये पूरा चक्कर ये चला था मेडिक्लेम का. तो मेडिक्लेम का और उधर से अप्रूवल नहीं आया बाय द टाइम 6:30, एंड दैट वो थर्ड पार्टी वाला जो था वो टीपीए डेस्क बंद हो गया. उन्होंने बोला वहां से अभी तक अप्रूवल नहीं आया है. इफ यू वांट टू टेक हिम, यू कैन टेक हिम टुडे, यू पे द ड्यूज एंड देन यू कैन क्लेम इट. अच्छा, तब था ऐसा कि सिचुएशन ऐसी थी कि मैं वो कर भी लेता, बट देन वो जब क्लेम जब तक सेटल नहीं होता नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए, इट वाज वेरी डिफिकल्ट. इट्स अ डैम प्रैक्टिकल इशू. मतलब ऑल माय इमोशंस वर सेइंग कि हाँ चलो लेट्स टेक हिम होम. ही वांटेड टू गो बैक होम. 15 दिन वहां रह के उनको लगता था कि आज घर चले जाएंगे, एंड ही वाज सो हैप्पी, ही वाज प्रिपेयर्ड कि आज घर जाएंगे, आराम से बैठेंगे, मस्त गाना वाना सुनेंगे. एंड बिकॉज माय डॉटर वाज टू यंग, सो आई कुड नेवर टेक हर टू द हॉस्पिटल. And he is very close to my daughter, he wanted to spend time. My daughter को भी ऐसा लगता था कि दादा आज आ जाएंगे, दादा आज आ जाएंगे. And I just called my mother कि यार ऐसा है, तो कल सुबह इन्होंने बोला कि कल सुबह हो जाएगा, तो कल सुबह डिस्चार्ज ले लेंगे. Dad, एक मोमेंट मुझे उनके चेहरे पे लगा भी, कह रहे यार, फिर नो प्रॉब्लम, क्या फर्क पड़ता है, आज आराम से इधर सो जाते हैं, कल सुबह चले जाएंगे. नेक्स्ट डे मॉर्निंग he got fever again. Doctor said with this fever I can't let him go, and then he never came back. So वो भी एक चीज है ना, like this I'm just telling an incident कि ऐसा भी एक इंसिडेंट जो हुआ है वो कांस्टेंट मेरे दिमाग में रह गया था कि यार मैंने उस दिन नहीं सोचा होता ना, अगर ये ले गया होता उनको घर, तो एटलीस्ट एक बार घर आ जाते. पर पता नहीं है मुझे कि अगर मैं वो करता तो भी क्या होता. बिकॉज फिर नेक्स्ट थॉट ये आता है कि फिर सुबह ही अगर वापस उनको, या रात को ही बुखार आता, तो वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट था, वापस उनको इधर से उधर ले जाना. बिकॉज वीकनेस, इतनी वीकनेस थी उनको कि एक बार घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत होती. तो शायद वो भी हो जाता. तो ये अगर ये होता तो ये होता तो ये होता, तो एंडलेस चीज है. क्योंकि और ये ज्यादातर गिल्ट जो है ना, ज्यादातर गिल्ट ना ये हमारे अंदर से इसलिए निकलती है क्योंकि हमारा एक ईगो होता है. सो गिल्ट इज अ पार्ट ऑफ ईगो कि मैंने ये नहीं किया, इसलिए मैंने ये, यू आर नोबडी टू डू, यू आर नोबडी टू डू, यू आर नोबडी टू डू एनीथिंग. इट वाज सपोज्ड टू हैपन दिस वे. एज फार एज द इंटेंट्स आर करेक्ट, don't blame yourself unnecessarily. You will not gain anything out of it. I've experienced it hard time. I've learned it hard time through the experience. That's it. Yeah. And I can see it in the wisdom that you have and what you've taken out of that experience. जो मैं कह रही थी कि जिस पे बीतती है वो समझ सकता है. Somewhere, this one line also that you had written, that I lost my father 2 years back, just made me feel like you will understand me. You have gone through it, so you will understand. And this thing that you said,
कि वो अब मेरे साथ है. दिस इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस जिस तक अराइव करने में बहुत वक्त लगता है. Okay. क्योंकि जब जब फ्रेश होता है और आपको कोई बोलता है नहीं नहीं वो तुम्हारे साथ है, तो बहुत गुस्सा भी आता है कि कहाँ से आते हैं, यू नो, वो तो ले गए, वो चले गए, आई कांट फील एनीथिंग, आई कैन ओनली फील हिज एब्सेंस. वो होते तो ये करते, ये कहते, बट कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे. आपको कितना वक्त लगा प्रतीक, जब you could have a hold on yourself where you felt his presence, कि आप अब जो आप ये लाइन कह पा रहे हो कि अब हर वक्त साथ है, ये कैसे हो पाया? स्तुति, it was there and there itself in the hospital. जब last time मैंने जैसे बोला ना, हम लोग हाथ पकड़ के खड़े थे उनका, and I saw all the numbers are going down on that screen, and finally when doctor said that okay it's done, I mean now you can just take it. उसके पहले ही when I started praying, मतलब मैं तो सिर्फ एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान तुमको जो ठीक लग रहा है ना वो कर लो, वो करना. हाँ, इनके लिए जो बेस्ट है ना वो करना. With my prayer that no, I want him back, I don't want to confuse things, or I don't want to create that energy that you know he suffers more. कि उनके लिए जो ठीक है ना वो करना. तो जब मैं ये बोल रहा था ना, तभी I had made up my mind कि he's not going anywhere, he's just here. More so my younger brother, I guess he was constantly with him, so he felt the void the biggest, to an extent that he lost a lot of his health also, which is now coming back on track after 2.5 years. Everyone actually copes different time, different speed. I was more worried about my mother. Yeah. She turned out to be the strongest. Yeah. My child, my daughter was very young. She's just 7 now. So when we lost my father, she was 4.5. तो उसको भी संभालने के लिए ऐसा था कि I can't be that weak for a long time, because और ये टाइम ही ऐसा है ना कि suddenly you have to take that driving seat, start managing things, put your head in lot of practical and actual things around, कि इसको कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ये कैसे करना है. And I guess I don't know if that is an escape that I found my peace with, or that's the only route that I understood. Yeah. But that helped me a lot. I just kept my mind away from this thing, and I always kept telling myself that he's there, he's with me, he's not going anywhere, he's not gone anywhere. Are you able to talk to him, Pratik? Koi conversation? I constantly talk to him. I constantly feel his energy. Because I tell you, Stuti, Scam was the last project that we discussed. I still remember when I was taking him to the hospital, and when doctor said that abhi ye karna padega, ye hai, you know, the खर्चा कोई भी हद तक जा सकता है, so you be prepared and all. हमने ये भी बना लिया था मन कि यार जो है जितना है उतना तो करेंगे ही, बाकी क्या होगा कि हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे कहीं रेंट के घर पे. ये घर भी जो है, मेरा जो फ्लैट है बॉम्बे का जो घर में, तो वो भी बेच देंगे. विल सी नो क्या होता है. बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए भी पूछना शुरू कर दिया था मैंने कि यार यहाँ नहीं होता, यूएस में होता है, तो वो कर लेंगे. बट एट हिज एज ही वाज 67, सो डॉक्टर सेड दैट बोन मेरो ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता इस एज पे. 55 इज द अपर मोस्ट लिमिट, सो वो भी नहीं था ऑप्शन. तो ये सब तो मैंने दिमाग में ये कर लिया. अब जब after I lost him, and exactly I guess 2 years, Scam released, things changed upside down. I constantly feel that it's only him who made everything possible for me, for the whole family. Because now he is able to, you know, he sees us, he constantly blesses us, constantly. मुझे पता है कि वो आज जिस कंडीशन में मैं हूँ ना, आज मैं जहाँ भी पहुंच पाया हूँ, आज मैं जिस भी हालात में हूँ, he would have been the most happy person. हम लोग रोज घर में 3 बार बात करते हैं. आज अगर डैड होते तो ये बोल, आज अगर वो होते ना ये बोल. So that means he is talking to us. Otherwise we wouldn't get this thought. That's beautifully put, because जैसे आप बोल रहे थे, और माँ बाप की आदत होती है ना, हमारे जाने के बाद तुम समझोगे. पहले तो हर बच्चा थोड़ा टेक फॉर ग्रांटेड करता है, उन्हें थोड़ा वो गिल्ट भी बाद में याद आता है कि तब ये बहस कर दी, या ये उल्टा जवाब दे दिया, या
तब वो कुछ पूछते थे। तो प्रतीक, are you there? Pratik, can you hear me? Hello. Pratik, are you there? Now, yeah. Now I can see. Suddenly Okay. it stopped. यार मेरे को सिर्फ एक डर है, इट स्टॉप्ड आई नो, बट मेरी रिकॉर्डिंग पता नहीं हुई है या नहीं। नहीं, रिकॉर्डिंग तो हुई है, यहाँ पर दिखा रहा है। हो रही है? अभी हाँ, तक हुई है? आई होप सो। अभी तक तो हुई है, रिकॉर्डिंग दिखा तो रहा था। ठीक है, ओके, वील कंटिन्यू फ्रॉम हमने जहाँ छोड़ा एंड जस्ट प्रे कि सब सही हो। ओके, सो यू नो व्हाट यू सेड, कहीं पे हम बच्चे अपने पेरेंट्स की प्रेजेंस को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बाद में वो गिल्ट भी रहता है कि बहस कर ली, उल्टा जवाब दे दिया, और वो हमेशा बोलते हैं जाने के बाद समझ में आएगा। एंड जो एक बात सबसे ज्यादा खलती है, यू रियलाइज दैट दे हैव बीन अ बिगेस्ट चीयरलीडर। जैसे आप बोल रहे हो, छोटी से छोटी चीज वो बड़े खुश होते हैं, मतलब सो मच सो कि जब हम बड़े होते हैं हम एम्बैरेस हो जाते हैं उनकी खुशी से कि इतना मत खुश हो, इतना मत बोलो किसी को, इसमें कुछ नहीं है, बट दे आर वेरी हैप्पी। एंड यू नो, मेरा हर रेडियो शो सुनना या कोई वीडियो सबसे पहले शेयर करना, खुश होना उससे। सो व्हेन ही लेफ्ट, वो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी कि वो पता नहीं सुन रहे हैं या नहीं, देख रहे हैं या नहीं। एंड यू लाइक यू सेड कि स्कैम एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में प्रूव हुआ। एंड देन you see your father's hand behind it, कि वो लास्ट प्रोजेक्ट था और कहीं ऊपर जाके ऐसे तार जोड़े उन्होंने कि ये फल मिला उसका। कहीं थोड़ा रिग्रेट या दुख इस बात का होता है प्रतीक कि he didn't live to see this success, that you become this this big। हाँ, होता है यार, इस चीज का तो हमेशा ये रहता है कि वो अगर फिजिकल फॉर्म में मेरे साथ होते तो मुझे वो अलग ही वर्ल्ड होता मेरे। हाँ, obviously, yeah, वो and अलग you ही would वर्ल्ड have होता। been so happy, yeah। Yeah, he would have been so happy. But I guess he's still happy. Yeah, and I can feel his happiness. फेथ की बात करूं अगर प्रतीक, डू यू बिलीव इन गॉड? और वो रिलेशनशिप कैसा था? गुस्सा थोड़ा था, थोड़ा अनफेयर लगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? नहीं, ये भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया वाली फील ना बहुत पहले मैंने वो वैसे फील करना ही छोड़ दिया। बहुत पहले कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। क्योंकि मुझे पता है, मैं आजू बाजू इतने सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ, दुनिया में इतना इतना गम है ना, कि एक्चुअली वो लाइन बहुत सही है कि दुनिया में बहुत गम है, मेरा गम बहुत कम है। मुझे याद है जब मैं 7th में था, माई दादी पास्ट अवे, और डैड तो 9 महीने के थे जब दादा गुजर गए थे। तो डैड ने उनके डैड को कभी देखा ही नहीं है, उनके लिए उनकी मतलब मेरी दादी ही सब मदर कुछ वाज, थी। हाँ, मदर एवरीथिंग। वाज। तो डैड का ऐसा था कि हिज एंटायर वर्ल्ड shattered suddenly. I was very young. I was just in 7th. Throughout the way, right from Bombay to my village, जो सूरत के आगे तड़ोद, वहां तक जब मैं गया था तब, बिकॉज तब मैं वैकेशन पे बॉम्बे आया था, बाकी तो हम लोग सूरत में रहते थे। सडनली पता चला ऐसा कुछ है, तब मोबाइल वोबाइल तो कुछ थे नहीं, फोन आया, वहां गए। पूरे टाइम जब छोटे होते हैं ना, तो हमारी फेथ अलग होती है ना गॉड। तो मैं पूरे रास्ते सूरत से बॉम्बे से सूरत ट्रेन में गए हम लोग 6 साढ़े 6 घंटे, और वहां से फिर बस में बैठ के मैं गांव पहुंचा, और 3 साढ़े 3 घंटे ये पूरे रास्ते में प्रे करना, भगवान दादी को कुछ नहीं होना चाहिए, भगवान दादी को कुछ नहीं होना चाहिए, दादी को कुछ नहीं होना चाहिए, ये बहुत बहुत। वो एक और बच्चे का वहां अभी तो, इनोसेंट फेथ। हाँ, अभी तो मैं गांव में घुस ही रहे हैं हम, और वहां ही बता दिया हमको कि ऐसा है। एंड आई सॉ माई डैड, ही जस्ट सेट ऑन द रोड, मिडल ऑफ द रोड। वो जो पूरा माहौल मैं 7th में था तब देखा था ना, तभी मुझे पता था कि यार ये कुछ अलग है। तब तो ये फिलॉसफी, ये सारी चीजें उतनी समझ में नहीं आती थी।
But then I guess I was a silent observer. Yeah. कि ये ऐसा ही होता है, ये इस तरह से ही लोग चले जाएंगे, और इसमें तुम you pray for their happiness, but you can't decide and you can't pray कि नहीं इसको इधर ही रखो. He or she can't go, because that can't happen. The world doesn't work that way. Yeah. Nature doesn't work that way. And slowly we at our own pace learn this. Yeah. Finally, Prateek, like you said, उनकी presence हर वक्त आप feel करते हैं. कोई एक बात, एक सीख, पेरेंट्स तो खैर बहुत कुछ सिखाते हैं, बट कोई एक चीज जो रह गई है जो आज एज अ गाइडिंग लाइट, क्योंकि मैंने देखा है कि डैड के जाने के बाद वो क्या कहते थे वो मुझे ज्यादा अब सुनाई देता है या याद आती है. ऐसी कोई सीख जो आप you hold very close to your heart that your father taught you? There are lots and lots of such things. Few things which are very, very, very close to my heart is when he said that सब अच्छा है in any condition. In any condition. मतलब उन लोगों ने ऐसी गरीबी देखी है जब डैड छोटे थे कि एक रोटी और अचार खा के दिन निकालने थे. वहां से लेके वहां से फिर सूरत में आके फिर ये करना, खुद का एक छोटा सा घर लेना, हमको पढ़ाना. मैं बॉम्बे आया, फिर मैंने जब पहली छोटी कार ली थी मेरी in 2010, and when he said, वो जो एक खुशी होती है ना, अरे मजा आ गया, उनको ये खुशी हर छोटी चीज में होती है. So I guess he knew how to live the life. मतलब छोटी से छोटी चीज, एक निवाला भी अगर किसी ने कुछ खिलाया हो कि यार बहुत बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, मतलब मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो बोलते थे कि यार तुम्हारे डैड को खाना खिलाना बहुत मजा आता था, बिकॉज ही वुड relish everything and he was a teacher. तो उन्होंने इतनी जनरेशंस को पढ़ाया है, और आज भी वो सारे स्टूडेंट्स I know, yeah. जिनके बेटे के बेटे उनके पास पढ़ते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स आज भी फोन करते हैं. They call me or they call my mother. They miss him so much. So I think what I have learned is just be a perfect human. Just be human. बाकी सब कुछ अपने आप होता है. एक ये चीज. दूसरी चीज simplicity. I have never seen a simple guy than him. इनके simplicity है यार, बोले simple, सारी चीजें simple है. उन्होंने जो मुझे एक चीज बताई थी कि तू ये जॉब भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, सब you just follow your heart. You want to do this, do this. क्या होगा, छोटे घर पे रहेगा, छोटी गाड़ी होगी, गाड़ी शायद नहीं होगी, भाड़े का घर होगा, तू बहुत खुश होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और उनकी वही बात सच हुई यहाँ तक. इनकी वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार. उन्होंने पैसों को कभी उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं था उनके लिए, कि हाँ यार वो आएगा जाएगा ठीक है. और हमको लगता था कि डैड ऐसा क्यों, मतलब तब हमें लगता है ना, वो जब टीनेज में और ये कि यू आर प्रैक्टिकल, यू आर नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. तो तब वो एक स्माइल होती है ना कि समझोगे, तुम भी यही समझोगे, थोड़ा आराम से समझोगे. He also gave me that competitive edge in my life, that you compete with yourself and better yourself every day. Be responsible for whatever you do. You don't blame others कि इसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं किया. तुम अपना गेम इतना ऊपर लेके जाना अपने आप ही, बाकी सब अपने आप होगा. So I guess because of him, I never blamed anybody for anything. मुझे ना किसी से रिग्रेट होता है, ना मुझे किसी से दुख होता है, ना मुझे किसी से एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि इसने फोन नहीं किया, ये मिलने नहीं आया, इसने ये नहीं बोला, उसने ये कर दिया. मुझे पता नहीं, मेरा दिमाग ही वैसे काम नहीं. बिकॉज डैड ऐसा बोलते थे कि मैं इनसे अच्छा रहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे रहने में मजा आता. अगर वो सामने वैसा रेसिप्रोकेट नहीं करता है तो वो उसका प्रॉब्लम है यार. मैं उसके ऊपर से अपने आप को क्यों चेंज करूं. तब बहुत फिलोसॉफिकल लगती थी ये बात, पर अभी इतना इजी है टू अंडरस्टैंड दिस फॉर मी कि एक्चुअली यार why would I change for somebody? Let me be myself and I'm happy. अभी तो ऐसी बहुत सारी अंडरलाइन चीजें हैं जो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हाँ यार उन्होंने शायद ऐसे ही चलती में बोल दिया था, मस्ती में बोल दिया था, but now I understand the layers of it. Yeah, now with experience. Prateek, thank you for opening up like the way you have. और
जैसे आप बोलते हैं आपके आपके फादर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, you yourself and you know have gone through so much, whether it's dealing with your father's loss, illness of your wife, your own struggle to reaching here in your profession, and yet शायद उन्हीं की ये सीख है that you don't complain and you continue. Finally, for all those जो सुन रहे हैं और grief और coping and grieving के अलग-अलग stages में है, anything that you'd want to share with them that will probably you think help them in their journey towards healing? I think everybody in the world, experiences it. So first and foremost is that you are not the only one who's going through something tough and difficult. When we were born, nobody told us that the entire life is going to be smooth or a fairy tale, right? It is a part of the life cycle. So experience it, let it go. Time is the biggest healer. कोई भी वीक मोमेंट पे कोई डिसीजन लेना मत. जब ऐसे कोई भी चीज दिमाग में आती है ना, जस्ट गिव इट अ टाइम कि आज अभी आया है ना, कल सुबह वापस सोचना. कल सुबह और भी ऐसा आ रहा है ना, शाम को देख. Give it a time. Just give it a time. Things will fall in place. Thank you. Thank you for doing this. And thank you for letting us all in to your journey of healing. And thank you for helping all of us. Thank you, Stuti. Thank you.